You must be asking a question to yourself, how much should I actually score to clear RBI grade B phase 1? Is it 60, 70, 80, 90 और what not? या फिर आप ये सोच रहे होंगे क्या अपने आप से ये क्वेश्चन पूछना सही है? तो मेरा आंसर है बिल्कुल सही क्वेश्चन है। अपने आप से एक क्वेश्चन जरूर पूछना चाहिए क्योंकि आरबीआई की कट ऑफ जो है वो रैंडम नहीं है। देयर इज अ पैटर्न एंड वंस यू अंडरस्टैंड दैट पैटर्न यू कैन प्रिडिक्ट अ सेफ स्कोर रेंज फॉर योर अटेम्प्ट। Trust me guys, most of the aspirants they ignore this and they prepare blindly, but in this video I'll show you the trend from the previous year and I'll also make you understand how can you use this trend in order to identify the competition ahead. Warm welcome, my name is Madhav Arora. I welcome you all on your own platform, that is Exam Now. So today we will be analyzing the cutoff of previous year examinations, specifically phase 1 of RBI grade B exam. First of all, before I start my discussion, we must understand there are certain factors which basically determine the cutoff not only for RBI grade B but I would say for most of the examination out there. The first one is the difficulty level of the examination, quite obvious. Second is the number of vacancies, very important. The total number of vacancies available. Third is the number of candidates who are going to appear for this examination, and fourth is normalization. But as per the RBI form filling trend this time, they are asking you to fill multiple preferences for your exam center. So it's quite obvious examination is expected to happen in a single shift as it happened in 2025. तो normalization होने के chances काफी ज्यादा कम है। अब बाकी के जो 3 फैक्टर्स हैं उसमें सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हमें ऑलरेडी पता है, दैट इज द नंबर ऑफ वैकेंसीज विच इज 40. लास्ट ईयर द कैंडिडेट्स हु एक्चुअली अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन वाज अराउंड 70,000 और मैं उम्मीद करूंगा कि इस बार भी जो कैंडिडेट का काउंट है वो ज्यादा कम नहीं होगा. रीजन आप लोग सोच रहे हैं कि सर वैकेंसीज इतनी कम है मैं तो एग्जाम नहीं दूंगा. जितने लोग अपने आप से ये कह रहे हैं कि मैं एग्जाम नहीं दूंगा, ट्रस्ट मी, they will fill the form and they will be at least attempting this examination. And if you are not, then I would suggest you do attempt this examination because examination को देखना अपने आप में एक बहुत बड़ा achievement है for the upcoming regulatory bodies exam, क्योंकि आप सिर्फ RBI नहीं, you will be attempting PFRDA, SEBI, IRDAI, NABARD and many other exams in the near future. तीसरी चीज जिसको हम अभी से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते बहुत कॉन्फिडेंटली, दैट इज द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द एग्जामिनेशन. बट जितनी तेजी से आरबीआई ने एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन दी है फॉर 2026, वी आर एक्सपेक्टिंग कि 2025 से ज्यादा डिफरेंसेस नहीं होंगे इन द 2026 एग्जामिनेशन. वी शुड expect that RBI should not give us any kind of surprises in 2026 क्योंकि 2025 का एग्जाम जस्ट कंप्लीट हुआ है. तो प्लीज सर वी विल एक्सपेक्ट that you will go on the same lines. Now let's check out the cutoff trend. अगर मैं cutoff की बात करूं 2019 the cutoff was 122 and the number of vacancies were 156. But मुझे ऐसा लगता है it's more relevant to talk from 2021 because in 2021 the pattern has been revised. In phase 2 descriptive has been introduced. तो 2021 में जो number of vacancies थी उसके हिसाब से जो cutoff गई थी that was 66.75. Reason cutoff was almost half. रीजन था डिफिकल्टी ऑफ द एग्जामिनेशन वाज इंक्रीज्ड. और वो डिफिकल्टी इंक्रीज सिर्फ 2021 में नहीं हुआ, द एग्जाम वाज डिफिकल्ट इन 2022 एज वेल. द कट ऑफ वाज 63.75. 2023 में अगर हम देखें तो कट ऑफ वाज 54.25. इसमें आप एक तरफ देख रहे हैं कि सर जो कट ऑफ है दैट इज इंक्रीजिंग एंड ऑन द अदर साइड यू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि कट ऑफ के साथ साथ जो वैकेंसीज है दे आर ऑल्सो डिक्रीजिंग. सो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि सर जो कट ऑफ है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ वैकेंसीज. जब भी कभी वैकेंसीज कम होगी कट ऑफ इंक्रीज होगी ही होगी. इट्स क्वाइट ऑब्वियस. नॉट ओनली दिस, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद द डिफिकल्टी लेवल एज वेल. जैसे जैसे डिफिकल्टी लेवल ऑफ द एग्जामिनेशन बढ़ेगा वैसे वैसे कट ऑफ कम होगी. अब ड्रास्टिक चेंज आया 66 वैकेंसीज के साथ 2024 में, लेकिन उस हिसाब से अगर हम देखें तो नंबर ऑफ वैकेंसीज में ड्रॉप था 1/3 बट ऑन द अदर साइड कट ऑफ इंक्रीज विच जस्टिफाइज दिस रिलेशन जो मैंने अभी आपके लिए बिल्ड किया है. और उससे अगले साल कट ऑफ इंक्रीज हुई, सॉरी नंबर ऑफ वैकेंसीज इंक्रीज हुई लेकिन उसके साथ साथ कट ऑफ भी इंक्रीज हुई. अब ये क्यों हुआ? सो दैट वाज बिकॉज ऑफ द अनदर फैक्टर व्हिच आई जस्ट मेंशन्ड, दैट इज द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द एग्जाम. मैं कहूं 2021, 22, 23, 24 ऑलमोस्ट सेम लेवल ऑफ एग्जामिनेशन था फेज 1 का, लेकिन 2025 was easy. 2025 was easy in comparison to the previous exams, जिसकी वजह से वैकेंसीज बढ़ी अनडाउटेडली, लेकिन वैकेंसीज के बढ़ने की वजह से कट ऑफ
कम होनी चाहिए थी, लेकिन कट ऑफ कम होने की बजाय कट ऑफ बढ़ गई। रीजन डिफिकल्टी लेवल वाज डाउन, डिफिकल्टी लेवल वाज मॉडरेट टू इजी और इजी टू मॉडरेट, जिसकी वजह से ऐसा हुआ। अब क्वेश्चन ये है कि सर 2026 में क्या होगा। अगर हम ये मान के चले कि 2026 में आरबीआई विल कम अप विद द सेम लेवल ऑफ एग्जामिनेशन एज दे हैव आस्क्ड इन 2025, तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो नंबर ऑफ वैकेंसीज पिछले साल के मुकाबले 2025 के मुकाबले ऑलमोस्ट हाफ हो चुकी है। और अगर मैं कहूं कि सर डिफिकल्टी लेवल सेम रहेगा, इन दैट पर्टिकुलर केस इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि जो आपकी कट ऑफ है दैट इज गोइंग टू इंक्रीज, और ये जो कट ऑफ है 77.50 से बढ़ने की उम्मीद है। और आप मान के चलो कि अगर सेम डिफिकल्टी लेवल ऑफ एग्जामिनेशन रहा, जिसकी एक्सपेक्टेशंस काफी ज्यादा है, तो आपकी जो कट ऑफ है इट विल इंक्रीज बाय 10 marks। तो इसका मतलब इफ यू आर गोइंग टू सिट फॉर द आरबीआई ग्रेड बी 2026 एग्जामिनेशन, कीपिंग इन माइंड कि अगर एग्जामिनेशन 2025 के लेवल का आया, देन आई शुड ट्राई टू टारगेट अराउंड 100 मार्क्स। लास्ट टाइम एग्जाम इजी था, कट ऑफ भी बढ़ी लेकिन उतनी नहीं बढ़ी। उसका रीजन था एक सरप्राइज, वो सरप्राइज था जनरल अवेयरनेस के काफी सारे क्वेश्चंस, regardless of the fact that we guys were preparing for finance current affairs and PIB current affairs as well as general awareness के साथ साथ static related काफी questions पूछे गए। लेकिन अब students they have identified this trend and we are helping you a lot to cover general awareness as well as the static derived from the current affairs itself, so we are super duper ready for that surprise। और अगर इस बार कोई नया सरप्राइज नहीं आता, as I said, अगर सेम डिफिकल्टी लेवल का एग्जामिनेशन आता है जैसा कि लास्ट ईयर में था, तो इस बार जो कट ऑफ है वो बढ़ने के चांसेस, और आपका जो टारगेट स्कोर होना चाहिए, वो टारगेट स्कोर कितना होना चाहिए, दैट शुड बी 100। नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग कि सर आपने बोल तो दिया 100 मार्क्स ले लो, लेकिन 100 मार्क्स आएंगे कहां से, वो भी तो बता दो। अगर मैं 100 मार्क्स की बात करूं, मेरे हिसाब से पिछले साल को अगर मैं दिमाग में रखूं, तो पिछले साल को दिमाग में रखते हुए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपका जो टारगेट होना चाहिए दैट शुड बी 13 to 16 मार्क्स। अगर मैं रीजनिंग की बात करूं, तो रीजनिंग के केस में योर टारगेट शुड बी 25 to 28 मार्क्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू टारगेट दिस। देन अगर मैं कहूं इंग्लिश, तो सर इंग्लिश में पिछली बार 2025 का एग्जामिनेशन टफ था। अगर मैं कहूं कि इस बार वो एग्जामिनेशन उसी लाइंस पे भी आया, देन ऑल्सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू फोकस 20 to 22, और बाकी के जो मार्क्स बचे हैं दैट इज नीड टू बी टेकन फ्रॉम द जनरल अवेयरनेस। अगर आप मोटी मोटी बात देखेंगे तो 45 plus 13 दैट इज 58, 45 plus 13 that is 58 marks we are expecting that you will be getting for minimum, you will be getting from quantitative aptitude, reasoning, English, तो around 30 marks to 35 marks you should be getting in GA। और अगर आप GA को प्रिपेयर कर रहे हैं पिछले इस लेवल के हिसाब से, आप करंट अफेयर्स प्रिपेयर कर रहे हैं, स्टार्टिंग प्रिपेयर कर रहे हैं, पीआईबी को अच्छे से कवर कर रहे हैं, फाइनेंस करंट अफेयर्स को अच्छे से कवर कर रहे हैं, द स्कोर में लैंड अप अबव 40 एज वेल। तो अगर आप इस रेंज में मार्क्स स्कोर करते हैं इस बार, देयर विल बी great chance that you will be clearing the phase 1 examination and you will be shortlisted for the phase 2 exam। but there is always a pinch of doubt। वो डाउट ये है कि सर क्या इस बार का जो एग्जामिनेशन है उसका डिफिकल्टी लेवल सेम रहेगा। अगर सेम नहीं होगा तो ऑब्वियस ही बात है जो कट ऑफ है वो कम जरूर होगी, लेकिन ज्यादा कम होने के चांसेस नहीं है। क्यों ज्यादा कम होने के चांसेस नहीं है? क्योंकि सर इस बार वैकेंसीज काफी कम है। तो अगर कम हो भी जाएगी, अगर डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा भी बढ़ जाता है, उसके केस में भी अगर हम देखें तो लास्ट टाइम 67.25 मार्क्स वॉज द कट ऑफ, तो इस बार वो कट ऑफ उससे तो ब्रीच नहीं होगी, इट विल गो अराउंड 70। तो मान के चलो कि इस बार अगर डिफिकल्ट एग्जाम हुआ तो 70, इजी एग्जाम हुआ तो अराउंड 87, इसके अराउंड इस ब्रैकेट के अंदर आपकी कट ऑफ फ्लोट करने वाली। अब क्वेश्चन ये है कि सर मैं कैसे प्रिपेयर करूं? भैया आप 2025 के एग्जामिनेशन को अच्छे से अटेम्प्ट करके जाओ। आपको पता होगा 2025 एग्जामिनेशन का क्या लेवल था। आप 2024 के प्रीवियस ईयर पेपर्स को अच्छे से अटेम्प्ट करके जाओ, आपको 2024 का लेवल भी पता होगा, और फिर जब आप एग्जामिनेशन में बैठेंगे यू कैन इजीली आइडेंटिफाई कि भैया ये क्वेश्चन तो या ये एग्जाम तो 2025 जैसा लग रहा है, तो भैया मेरा टारगेट होना चाहिए 100 अटेम्प्ट का और मेरा स्कोर होना चाहिए 85 प्लस। अगर आपको लगा कि एग्जामिनेशन काफी टफ है, वो आपके लिए नहीं, वो सबके लिए टफ होगा। आप रियलाइज करेंगे कि ये तो 2024 लेवल का एग्जामिनेशन है, तो मेरी कोशिश है कि मेरा अटेम्प्ट 75 प्लस हो और मेरे जो मार्क्स है दैट शुड बी अराउंड 70, सो दैट आई कैन क्लियर, सो दैट आई कैन राइट द फेज 2 एग्जामिनेशन। याद रखना फेज 1 क्लियर करना ज्यादा टफ है इन कंपैरिजन टू फेज 2, की फेज 2 में वी हैव एम्पल ऑफ थिंग्स टू मैनेज, ईएसआई, फाइनेंस, मैनेजमेंट, इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव, एक 3 में से 2 पेपर भी अगर हमने स्ट्रॉन्ग कर लिए तो हम फेज 2 को क्लियर कर पाएंगे। लेकिन फेज 1 के केस में कहीं ना कहीं हर एक सेक्शन पे
कमांड होनी जरूरी है। और इस बार अगर मैं 2025 की बात करूं तो एक और ट्रेंड चेंज हुआ है। अभी तक हम कहते थे कि जो सेक्शनल कट ऑफ है दैट हैज नेवर गॉन अबव 25%, लेकिन 2025 में जो सेक्शनल कट ऑफ है दैट वाज 30%। तो इस बार आपका टारगेट सेक्शनल कट ऑफ का यानी पर सेक्शन जीए 80 में से 24, रीजनिंग का 60 में से 30% इज 18, इंग्लिश का 30 में से 30% is 9, quant का 30 में से 30% is 9 again. तो this is the bare minimum marks which you need to score in every section given that कि उनके कितने number of questions पूछे जाएंगे and overall क्या आपका score होना चाहिए, that expectations or that format has also been provided to you in this particular video as well. जाने से पहले कुछ ऐसी चीजें जो आपको हमेशा एग्जाम में बैठने से पहले समझनी है, याद रखनी है। एग्जाम आपकी स्क्रीन पे आने से पहले प्रिडिक्ट मत करना कि आज कट ऑफ क्या होगी। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि अगर एग्जाम 24 जैसा आया तो 70 के आसपास, और अगर 25 जैसा आया तो 87 के आसपास कट ऑफ जाने के एक्सपेक्टेशंस हैं डिपेंडिंग अपॉन द प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स। दूसरा पॉइंट है सेक्शनल कट ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट है। यू शुड try your level best that your sectional marks in every section should not be below 30%, otherwise it will be impossible to sit for the phase 2 exam. Remember that कि जो आपका 30% है of the total, for example अगर मैं 200 की बात करूं, 200 का 30% बनता है कितना, 60 मार्क्स, लेकिन जो आपकी ओवरऑल कट ऑफ है वो हो सकता है कि 87 तक चली जाए डिपेंडिंग अपॉन कि अगर इजी एग्जाम आया तो यहां पर आपका जो सेक्शनल कट ऑफ का सम है दैट इज क्वाइट लो इन कंपैरिजन टू दी ओवरऑल कट ऑफ। तो ऐसा नहीं कि हर सेक्शन की सेक्शनल कट ऑफ क्लियर कर ली और आपके चांसेस बन जाएंगे इस एग्जाम को क्लियर करने के, नहीं। तो आपको कहीं ना कहीं इंग्लिश प्लस जनरल अवेयरनेस, ये दो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिन पे आपको ज्यादा कमांड रखनी होगी, ज्यादा एफर्ट्स लगाने होंगे, क्योंकि दीज सब्जेक्ट्स विल हेल्प यू इन फेज 2 एज वेल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज रिमेंबर प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। इवन वन सिंगल मार्क, even 0.25 mark can decide that whether you will be writing phase 1, whether you will be writing phase 2 examination or not. और अगर मैं बात करूं प्रैक्टिस की तो we have launched 75 days 75 test challenge. If you are ready to attempt, if you are ready to prepare with us QRE, that is quant, reasoning, English, as well as general awareness के sectional test, along with that 10 full length mock test for phase 1. Similarly, we have the sectional test for ESI, finance, management, English descriptive, plus we have 10 full length mock tests for phase 2 as well. ये सारे के सारे टेस्ट बेस्ट पार्ट एक प्रॉपर शेड्यूल के साथ आपके पास अवेलेबल होंगे. जस्ट फॉलो दैट शेड्यूल, attempt 75 tests in 75 days. The chances to clear not only phase 1 but phase 2 will be bright high with this particular course. We call this course as Quick Norm. Do join the crash course. It is available at very low prices, just 2960 by using a code RBI26. Good luck. See you in the next video. Stay tuned and don't forget to subscribe the channel.